I'll briefly cover the higher education and funding opportunities in the US. So before you start your journey, you should definitely ask yourself like who you are and why are you here today. If you're watching this, definitely you're interested in coming to the US. And you should ask yourself, as I said earlier, कि आप क्यों आना चाहते हो, क्यों PhD करना चाहते हो. अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आपके पास नहीं है तो you are not ready for PhD. You need more time. You need to understand that research is not like a degree, like a BS or undergraduate degree. It's like a full-time commitment. So ask yourself, talk with your peers. It becomes a lifestyle for you later on. And now we'll talk about the requirements क्या है PhD के लिए US में. Everything that I'm going to say is specifically focused on the US. So when you can apply, how to shortlist the universities, what kind of exams you need to take, preparation guidelines for those exams, what kind of essays you need to submit with your application, when you can contact professors. I will share some precedents of admissions with you as well, and I will also, I know a lot of applicants from Pakistan do not have money to pay the admission fee, because admission fee is sometimes in like $100, $150. It's a lot of money in Pakistani currency. So I'll talk about how you can get the waiver for that. If you have any questions other than this list that I showed, I will be more than happy to answer those questions as well. So first thing is about so the requirements for application in the US, you need a GRE general test. GRE general is a test of maths and English. There is no chemistry in this test. So there are 340 points in this exam, and they are equally divided between chemistry and between maths and English, and there is no chemistry in that. So this is a requirement for almost all the schools. There are some schools that waived GRE during the COVID times, लेकिन the schools are getting back to that as well. ये पहले requirement कुछ टाइम के लिए वेव हुई थी, लेकिन अभी वापस आ रही है. और अगर वेव हो भी तब भी ये टेस्ट आपको जरूर देना चाहिए. जैसे हमने पहले बात किया, पाकिस्तान में रिसर्च कल्चर इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, एंड सिंस यू डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रोफाइल, एंड इफ you do not have a strong research profile, having GRE can put you ahead of the line. Then GRE subject test. This is a test, again, GRE, Graduate Record Examination. This is a test by the same company, ETS, लेकिन this is chemistry specific. और ये तमाम स्कूल्स को नहीं चाहिए होता. सिर्फ कुछ स्कूल्स हैं जो ये रिक्वायर करते हैं, और काफ़ी हाई एंड स्कूल्स हैं जैसे MIT और Ivy League यूनिवर्सिटीज़, वो ये रिक्वायर करती हैं. इफ़ यू हैव टाइम एंड मनी एंड एनर्जी, आई वुड रिकमेंड टेकिंग GRE केमिस्ट्री एज वेल. लेकिन इफ़ यू डू नॉट हैव टाइम और एनर्जी और मनी, जस्ट skip that as well. Then another very hard requirement is TOEFL. TOEFL is a test of English speaking, listening, writing abilities. और इसके 120 पॉइंट्स होते हैं. और यूजुअली अगर आपके 100 तक आ जाते हैं तो यू कैन गेट एडमिशन इन सम यूनिवर्सिटी. अगर आपके 110 प्लस होते हैं तो आपका हर जगह एडमिशन हो सकता है. और ये रिक्वायरमेंट इवन टॉफल के टाइम पर भी वेव नहीं हुई थी. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इट्स एन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट. एंड आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द US, स्टार्ट फ्रॉम टॉफल. उसके बाद GRE टेस्ट जनरल की तरफ जाएं, उसके बाद GRE सब्जेक्ट की तरफ जाएं. ये वो चीज़ें हैं, ये वो 3 रिक्वायरमेंट्स हैं दैट यू हैव टू मीट. एंड देन उसके बाद आपको रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं. आपके पाकिस्तान में जो प्रोफेसर्स होते हैं, दे कैन राइट दोज लेटर्स फॉर यू, एंड दे हैव टू सबमिट दोज लेटर्स ऑनलाइन. इट्स नॉट अ फिजिकल लेटर. देयर आर ऑनलाइन पोर्टल्स एंड प्रोफेसर्स हैव टू सबमिट देयर. प्रोफेसर्स गेट emailed directly from the university. There is another extremely extremely important thing called statement of purpose या personal statement. This is probably one of the most important thing other than or almost equivalent to your test scores. अगर आपके टेस्ट स्कोर अच्छे नहीं है और आपका GPA भी अच्छा नहीं है, आप उसको भी जस्टिफाई कर सकते हो पर्सनल स्टेटमेंट में कि क्यों अच्छे नहीं है, या आपके क्या, आपके लाइफ बैकग्राउंड्स, लाइफ इवेंट्स क्या रहे हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. यू हैव टू show them कि you are actually motivated for the program, and what are your future goals, what will you do during your PhD, and why you want to apply for PhD. So these kind of things. You need your resume. You need transcripts from your undergraduate and graduate institutions. And उसके अलावा last but not the least, you have to submit the application within deadline. Maximum US universities की जो applications open होती हैं, they are in August to September every year, and then the applications close somewhere around February. So Feb के end तक applications close हो जाती हैं maximum schools की. जो earliest deadlines होती हैं, that is November 15th, that I know. कुछ schools की November 15 deadline होती है, तो keep the deadlines in your mind. Very very important. टाइमलाइन जो मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ आपके सामने है. हर एक आपके लिए थोड़ी सी ये डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि जून जुलाई में प्रिपेयर फॉर GRE, रजिस्टर फॉर GRE जनरल. जुलाई एंड अगस्त के अंदर प्रिपेयर फॉर GRE जनरल, स्टार्ट लुकिंग फॉर पोटेंशियल स्कूल्स. इन अगस्त अप्लाई अपीयर फॉर द GRE. इन सितंबर एंड अक्टूबर you have to start writing the emails for the fee waivers, क्योंकि यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ फी वेवर अवेलेबल होते हैं. तो द सूनर यू रीच आउट, द हायर द चांसेस आर दैट यू विल गेट दैट
fee waiver. Then appear for TOEFL exam in September and October as well. And if you are planning to prepare for GRE subject test, it's only conducted once in a year, unlike GRE general. GRE general हर महीने 2 दफ़ा होता है, TOEFL हर महीने 2 दफ़ा होता है, लेकिन जो GRE जनरल है, सॉरी GRE स्पेसिफिक है सब्जेक्ट का, वो साल में 1 दफ़ा ऑफर होता है। तो जो मेरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है इस साल अक्टूबर में हुआ, लेकिन यू हैव टू चेक ETS वेबसाइट फॉर दैट एंड सी कि आपकी जिस साल आप अप्लाई कर रहे हो उस साल का ऑफर हो रहा है। अक्टूबर नवंबर के अंदर आई वुड सजेस्ट के फाइनलाइज द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। वो लिस्ट कैसे बनानी है उसका मैं आगे जाके डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ब्रीफली ये है कि आपके जो स्कोर्स हैं उनके मुताबिक एक रियलिस्टिक डिसीजन बनाना है कि अगर आपके स्कोर टॉफल में 100 है, GRE के अंदर 305 है या 315 है फॉर एग्जांपल, दैट इज़ अ गुड प्रोफाइल। तो आप अच्छे स्कूल्स को टारगेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके टॉफल में 90 हैं, GRE के अंदर 300 के करीब है, देन लुक फॉर सेफर स्कूल्स एज वेल। तो लाइक दैट डिसीजन ऑफ स्कूल्स इज बेस्ड ऑफ योर स्कोर्स, योर इंटरेस्ट, वहाँ की फैकल्टी, वहाँ पे वो चीज़ें ऑफर हो रही हैं या नहीं हो रही जो आप करना चाहते हो। और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आजकल के दौर में जो डिसीजन हो गया मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज़ की प्रेफरेंस में, दैट कुड बी कि वो स्टेट जो है वहाँ के पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है। क्योंकि कुछ स्टेट्स जो हैं US की, दे आर वेरी फ्रेंडली, इमिग्रेशन फ्रेंडली, इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रेंडली। कुछ स्टेट्स जो है वो नहीं है, तो आपको ये भी एक थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नवंबर दिसंबर में यू कैन सेंड योर एप्लीकेशंस and then wait for the decision. This is the best timeline or ideal timeline. And I know ideal things don't happen in real life. So, this wouldn't be the case for everyone. Lekin this is a specific timeline that I shared. So Ji. you said you talked about the safe school based on the profile of the candidate. Mhm. Can you briefly elaborate it, please? सो सेफ स्कूल्स का मतलब ये है कि देर आर सम स्कूल्स जहाँ पे हमारे पास प्रेसिडेंट मौजूद हैं कि लोगों के GRE में 290 थे, 270 थे, तो उनके एडमिशन्स हुए हैं। आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन आई विल टेक यू टू अ वेबसाइट एंड आई शो यू हाउ टू शॉर्ट लिस्ट द सेफ schools actually. So That's yeah, great. yeah. If I forget that, please remind me. But I have taken a note as well. I'll show that. Sure. So talking about the test scores, GRE general computer based test होता है, multiple times per week offer हो रहा होता है, और you should register as soon as you can. And one of the most important components, wave है या नहीं है, I highly recommend everyone coming to the US should take GRE general test. इसके अंदर जो है आपके दो बेसिक सेक्शन होते हैं, वर्बल सेक्शन एंड क्वांटिटेटिव सेक्शन। वर्बल इज इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव इज मैथ्स। इनके अलावा 6 नंबर का 6 पॉइंट्स का एक और सेक्शन होता है जो एनालिटिकल राइटिंग सेक्शन होता है, लेकिन दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अ लॉट ऑफ स्कूल्स डू नॉट आस्क फॉर द एनालिटिकल राइटिंग स्कोर। दे आर मोर कंसर्न अबाउट योर वर्बल एंड क्वांटिटेटिव सेक्शन। सो each of them, like verbal is 170, quantitative is 170, and analytical is 6 points, so total 346 points. Lekin most of schools ask for your score out of 340. um, और इसके लिए ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं। आई कैन टॉक अ लॉट मोर एंड वी कैन डू अनदर सेशन एट वन स्टेज अबाउट GRE की तैयारी। लेकिन आई वांट टू फोकस मोर ऑन द एडमिशन। लेकिन I have mentored and coached a lot of students for their GRE general test, and alhamdulillah, everybody got really good scores in GRE general. So I have like strategies that I can share for with you about the GRE general. कुछ रिसोर्सेज हैं आई कैन शेयर, आमिर, आई कैन शेयर विद यू द गूगल ड्राइव लिंक, जहाँ पे मैंने अपने नोट्स, जिस दौर में मैंने तैयारी, इट्स बिन लॉन्ग टाइम, 2018 में मैंने दिया था, तो मैं, लेकिन स्टिल नोट्स आर स्टिल वैलिड। तो आई कैन शेयर माई नोट्स एंड एवरी कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव विद यू। मागूश के नाम से जो है ये कंसिडर की जाती है बहुत अच्छा रिसोर्स। इसके अलावा मैनहट्टन 5 पाउंड बुक ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिसका अभी 5वां एडिशन आ चुका है, दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। GRE chemistry, I'm not going to focus on this in the best interest of time, lekin it's also very specific chemistry related exam. It's a paper based. There are about 130 questions. अगर आपने अच्छा BS किया हुआ है या अच्छा मास्टर्स किया हुआ है तो you can easily ace that exam. ये बहुत बहुत मुश्किल नहीं होता। अगर फिजिक्स वाले या मैथ वाले करना चाह रहे हैं तो वो सब्जेक्ट का देंगे। एग्जैक्टली, अगर आप PhD मैथ्स में या फिजिक्स में करना चाहते हो, यू हैव टू टेक योर ओन सब्जेक्ट एग्जाम। लेकिन एज आई सेड, आई डिड नॉट टेक GRE केमिस्ट्री क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था, और जिन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करा था उनको ये चाहिए भी नहीं था। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु डिडंट टेक GRE केमिस्ट्री एग्जाम, लेकिन दिस इज समथिंग यू कैन टेक एंड इट विल बूस्ट अप योर प्रोफाइल। इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट, लेकिन इट्स अ थिंग टू enhance your profile. Is it requirement for top tier universities in US? It is a requirement for at least top 3 universities that I know. All right. Okay. Yeah. And then TOEFL is requirement for all the universities. There are 4 sections: reading, listening, speaking, and writing. There are 120 points in total. आपकी हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है. Again, I'll show you just in a bit how you check that requirement and how you make your list. And then इसकी कोई एक तरीका नहीं है TOEFL की तैयारी का. जस्ट प्रैक्टिस करें इंग्लिश को, सुनने की, समझने की, बोलने की, उसी से ये चीज़ इंप्रूव होगी आपकी. So for the application process, every university has a different deadline. I would recommend you make a list. When I was applying, I made an Excel list with all the universities, their deadline, and my application status.
So make a list of that. How many universities you should apply to? This is a question that I get to hear a lot of times. A good number would be 10 to 15 universities to apply. उन 15 यूनिवर्सिटीज के अंदर देयर शुड बी 3-4 टॉप यूनिवर्सिटीज. बाय टॉप आई मीन टॉप 50. उसके बाद 5 से 7 जो है वो इंटरमीडिएट रैंकिंग 50 से लेके 120 तक. और 2-3 सेफ स्कूल होने चाहिए 120 से लेके जिनकी 200 तक जिनकी रैंकिंग जा रही होती है. तो वो रैंकिंग कहाँ से देखनी है मैं भी आपको उस वेबसाइट पे लेके जाता हूँ. अगेन यूनिवर्सिटीज को कैसे सिलेक्ट करना है, बहुत सारी उसकी वेज हो सकते हैं. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं. आप रिसर्च ग्रुप्स को देखें, प्रोफेसर वहाँ पे वो हैं या नहीं हैं जो आप करना चाह रहे हैं. लुक फॉर द यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स. प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि वहाँ पर आपके जैसी प्रोफाइल का पहले एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है. लुक फॉर दैट, बी रियलिस्टिक. अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी नहीं है और यू टारगेट MIT तो वहाँ पे नहीं होगा एडमिशन. इट्स नॉट यहाँ पे कोई मेडिकल, मतलब ये नहीं होना कि आपकी दुआएं बड़ी जिंदगी में हेल्प करती हैं, लेकिन यहाँ पर मोर्जा दुआओं से नहीं होगा. यहाँ पे प्रोफाइल बेस्ड आपका काम होगा. उसके बाद अपनी अपनी हेल्थ को देखें और ये देखें कि आप बहुत अमेरिका की कुछ जो रियासतें हैं दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड. अभी मैं जहाँ शिकागो में बैठा हूँ, जस्ट चेक द टेम्परेचर. आज December 15, इट्स -15 डिग्री सेंटीग्रेड आउटसाइड. इट्स फ्रीजिंग कोल्ड. तो आप अगर सर्वाइव कर सकते हो कोल्ड वेदर में तो आप ऐसी स्टेट्स में आए, वरना आप जो है यहाँ पे दूसरी स्टेट्स भी हैं जहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती है. और उसके अलावा आपको जैसे मैंने बताया कि मैं केमिस्ट्री एजुकेशन रिसर्च में प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो वो हर यूनिवर्सिटी में ऑफर नहीं हो रहा होता. तो आपको ये चेक करना है कि क्या इस यूनिवर्सिटी में वो प्रोग्राम ऑफर हो रहा है या नहीं हो रहा जो मैं करना चाह रहा हूँ. अपने ड्रीम स्कूल्स को देख लें और अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाएं आप. फॉर द एप्लीकेशन फ़ी, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये वेव हो जाती है बशर्ते कि आप टाइम पे रीच आउट करें यूनिवर्सिटीज़ को. नॉन रिफंडेबल होती है एप्लीकेशन फ़ी. और it usually ranges from $70 to $150. You have to request university, you have to write them an email and tell them that you cannot pay this fee, based off of your financial situation. You can tell them Sorry to cut. Do they need a specific document showing their not really. They just, I remember I applied for the fee waivers in multiple universities. They just waive it off based on first come, first serve thing. And secondly, if you just describe in the email that you are, not able to pay the fee based off of your financial situation. That's great. और देयर आर मेनी स्कूल्स दैट आर फ्री एज वेल. ऐसा नहीं है कि तमाम स्कूल्स की फी है. जिनकी फी है उनको आप ये ईमेल करेंगे. ओवरऑल आई वुड से अबाउट $1,500 लग सकते हैं. इन $1,500 के अंदर GRE की फ़ी शामिल है, टॉफल की फ़ी शामिल है, आपके वीज़ा की फ़ी शामिल है, आपके एयर टिकट्स शामिल हैं. तो ये तमाम चीज़ें जो इसके अंदर आपको अबाउट, अगर आप US आना चाह रहे हो तो स्टार्ट सेविंग नाउ. अबाउट $1,500 आपको लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में. उसके बाद फिर How आप much it is in PKR? दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. लेट मी चेक. So 1,500 USD to PKR, it's somewhere around 4 lakh. Yeah. So ये जो अमाउंट है, इट्स अ बिग अमाउंट, आई अंडरस्टैंड दैट. लेकिन द गुड थिंग इज कि यू डोंट हैव टू पे इट इन अपफ्रंट. सो you don't have to pay this amount upfront. This is a good thing. Give me 1 second, please. So you can pay for GRE and then TOEFL, at separate stages. Then university fee are separate. So yeah, you pay at different stages. And also, I want to let you know that about this, there are different organizations that help you with this kind of fee as well. So 1 second. Okay, I'm sorry. I was receiving a call and I had to respond to that. Okay, next one is about how to ask for application waivers. You can email the graduate admissions office, or you can email. I will show you an example in a bit that how you can email the specific person of your department as well. Do not copy and paste same email जो आपके पिछले साल किसी दोस्त ने की होगी. अपनी specific email जो है अपनी बनाएं खुद एक, और यहाँ पर एक customized email लिखें. I would highly recommend that. How do you select the potential supervisors? I'll give you a live tutorial of that in a minute. Lekin go for their profiles. The profiles are available on the university. They're pretty much updated. Look for the profile and see कि आप उसके साथ मैच कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. और बाकी ग्रुप साइज को देखें. You also can look के इस रिसर्च के ग्रुप के लोग पहले कहाँ पर गए, उनकी पोजीशन प्लेसमेंट्स कहाँ पर हुई हैं after their PhD. तो that can help you make a decision as well. Um, then do you need to email professors? This is another question that I get to hear a lot of times. Honestly, you do not need to email professors. It can help in a way, लेकिन सिर्फ उसी वक्त ईमेल करें कि जब आपको यूनिवर्सिटी का यकीन हो कि यहाँ पे मेरा एडमिशन हो सकता है. Otherwise, don't bug them. Don't send them a lot of emails. Don't do that. If you are emailing them, it should be a short, very specific, and a very meaningful email. Know कि why you are emailing a professor. Just don't send a random email to anybody. इसकी वजह से ना सिर्फ आपकी एप्लीकेशन खराब हो सकती है, बल्कि पूरे कंट्री का इमेज खराब होता है कि ये लोग ईमेल स्पैम करते रहते हैं प्रोफेसर्स को. वो acceptance letters
नहीं रिक्वायर्ड होता है। नो, यू इन द यूएस द एडमिशन प्रोसेस इज वेरी सेंट्रल, तो यूनिवर्सिटी डिसीजन बनाती है, प्रोफेसर को उसमें रोल नहीं होता, प्रोफेसर हैज नथिंग टू से इन योर एडमिशन सिलेक्शन। हाँ राइट। देन रिकमेंडेशन लेटर्स इज अनदर थिंग दैट आई गेट टू हियर अ लॉट, सो दिस समथिंग आपको पाकिस्तान से लेना पड़ता है। आपके जो प्रोफेसर हैं, यूजुअली मैं रिकमेंड करूंगा आप उनको इन टाइम रीच आउट करें। ऐसा नहीं है कि आप उनको नवंबर में जाके कहो कि अच्छा मुझे लेटर्स चाहिए, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेसर एटलीस्ट फ्रॉम सरगोदा यूनिवर्सिटी दैट आई नो कि दे आर नॉट सॉर्ट ऑफ लाइक चेकिंग देयर ईमेल्स ऑन डेली बेसिस, तो उनको आपको मल्टीपल रिमाइंडर्स देने पड़ते हैं कि आपको एक ईमेल आई होगी, वो अपना आप इनबॉक्स खोल के, इवन मुझे याद है मेरे एक प्रोफेसर थे, उनको मैंने मल्टीपल रिमाइंडर्स दिए एंड ही फॉरगॉट एंड देन आई एक्चुअली हैड टू गो एंड ही सेड कि मेरा ये ईमेल बॉक्स खुद चेक करो और बताओ कहाँ पर ईमेल है, एंड आई हैड टू ओपन his email and then he found that university link and then he filled my letter, but just keep in mind that you have to keep reminding them, so reach out. Sometimes they pick the stick and says that come here. Exactly. So you have to like keep reminding and you have to sort of like there's something you have to be very careful about, because as long as your letters are not complete, your application is considered incomplete. Statement of purpose, जैसे मैंने पहले बताया, I have done multiple sessions with a lot of like different people about personal statement कि This कैसे is लिखनी है। this is very key document. या इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आपकी प्रोफाइल में जितनी भी खामियां हैं या जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आप यहीं पर हाईलाइट कर सकते हो। आपका अगर जीपीए अच्छा नहीं है तो वो आप यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हो। आपने अगर रिसर्च नहीं की हुई, आपकी पब्लिकेशंस नहीं है, तो वो यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हो। इट इज़ योर वे टू टॉक टू देम, सो बी योर सेल्फ। नेवर एवर, दिस इज़ वन एरिया वेयर आई से नेवर एवर इवन थिंक अबाउट यूजिंग AI for this. If you're using AI for your personal statement, I can give you in writing that you are not getting admission in the US at least, क्योंकि जो एडमिशन कमेटी में लोग बैठे होते हैं दे आर सुपर ट्रेंड इन पिकिंग कि कौन सी फेक स्टेटमेंट है और कौन सी रियल स्टेटमेंट है। दे मैच योर प्रोफाइल, दे मैच द वर्डिंग ऑफ योर पर्सनल स्टेटमेंट विद योर क्रीडेंशियल्स। आपके टॉफल के अंदर 90 स्कोर है और आपकी एसओपी बड़ी हैवी इंग्लिश में लिखी हुई है तो मतलब फेक है, या आपने कहीं से कॉपी की है। और इट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से। और आपका इंटरव्यू भी होगा आगे जाके, तो इंटरव्यू में अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं, स्टेटमेंट के अंदर आपने बड़ी हैवी इंग्लिश लिखी हुई है, तो दैट इज अनदर साइन फॉर देम। So this is a very very important statement, very important part in your journey. 1 से 2 पेजेस का ये ऐसे होता है। आप इसमें बताते हो कि आप क्यों परस्यू करना चाहते हो ग्रेजुएट स्कूल, इसके बाद जिंदगी में क्या करना है, कौन से ग्रुप्स में इंटरेस्टेड हो, और इस यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई कर रहे हो, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। I can share these slides with you, Amir, after the presentation, and you can, if anybody reaches out to you, you can share with them these slides so you can read more about, कि कैसे लिखनी है personal statement. There are a lot of guideline on internet as well. इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च स्टेटमेंट चाहिए होती है, तो रिसर्च स्टेटमेंट इज समथिंग वेयर यू डिस्क्राइब द काइंड ऑफ रिसर्च दैट यू हैव डन। इफ यू हैव नॉट डन एनी रिसर्च यू कैन इग्नोर दिस, लेकिन इफ यू हैव डन, इट इंक्लूड्स द टाइटल, नेम ऑफ योर एडवाइजर, द इंस्टीट्यूशन दैट यू वर्कड इन, द गोल ऑफ योर प्रोजेक्ट, और मेन थिंग्स दैट यू हैव अकम्प्लिश्ड। आपको पॉइंट्स नहीं लिखने वहां पे, लेकिन ये की पॉइंट्स माइंड में रखने हैं पैराग्राफ्स लिखते हुए। उसके अलावा सीवी या रेज्यूमे अपलोड करनी है। याद रखिएगा, मैंने बड़ी बड़ी अजीब सीवीज देखी हैं। सीवी इज़ अ वेरी सिंपल डॉक्यूमेंट, उसमें कोई आपने अपनी ऊपर तस्वीर नहीं लगानी होती है। मतलब एक, मैं आपको अपनी सीवी अभी दिखा दूंगा कुछ देर में, लेकिन इट हैज़ टू बी अ वेरी सिंपल डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपकी एजुकेशन, आपके अचीवमेंट्स और आपकी जो पब्लिकेशन है वो लिखी हुई, दैट इज इट। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं। रिमेंबर कि जितनी जल्दी अपना ट्रांसक्रिप्ट, खास तौर पे इफ़ यू आर फ्रॉम पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, इट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट योर ट्रांसक्रिप्ट्स एंड देन गेट देम अटेस्टेड फ्रॉम AGC एंड दोज, सो जस्ट स्टार्ट दैट प्रोसेस एज सून एज यू कैन। उसके अलावा टेस्ट स्कोर सेंड कैसे करने हैं, टॉफल और जीआरई जो होता है वो जब जब आप टेस्ट देते हो तो वहीं पे वो आपसे पूछ लेता है कि किन यूनिवर्सिटीज़ को भेजना है। उन यूनिवर्स आई थिंक 3 यूनिवर्सिटीज़ या 4 यूनिवर्सिटीज़ फ्री होती हैं। उसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज़ में पर यूनिवर्सिटी $20 आपको टॉफल के लिए एंड $27 फॉर जीआरई पे करना पड़ता है। So you have to have a list of universities before you apply for GRE and TOEFL. And then when the applications are all online, so you make your application account, you submit your scores, and you submit your letter of recommendation. You don't submit the letter of recommendation, you submit the name of professor and his email, and then they submit your letter. And in the end, keep an eye for your application. ये यहाँ तक प्रेजेंटेशन थी। अभी ये कुछ प्रेसिडेंट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस सीजीपीए के ऊपर, कितने जीआरई सब्जेक्ट के ऊपर और कितने जीआरई के वर्बल स्कोर पे लोगों के एडमिशन हुए हैं। आप टॉप यूनिवर्सिटीज में देखोगे, एमआईटी में लोगों का 3.9 जीपीए था, लोगों के एडमिशन हुए हैं, और 3.2 जिनका जीपीए था उनके भी एडमिशन हुए हैं। अब 3.2 को लो जीपीए कंसिडर किया जाता है, लेकिन यू मैथ्स में, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में 3.2 के ऊपर बच्चे का एडमिशन हुआ है, उसने जीआरई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ था। जीआरई में उसके वर्बल में यानी इंग्लिश वाले में 151 थे, और जीआरई उसमें क्वांटिटेटिव यानी मैथ्स के अंदर उसके 158 थे, और ये 309 बनते हैं टोटल। और 309, 309 इज नॉट अ हाई स्कोर एट ऑल, 309 इज वेरी वेरी अचीवेबल। सो 309 पर इस बच्चे का एडमिशन हुआ है विद 3.2 CGPA।
इसके अलावा हमारे पास 3.3 की प्रेसिडेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ मिनिसोटा और मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी। यहाँ पर स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है विद 3.3 CGPA। जी 92 उनके सब्जेक्ट में परसेंटाइल था, और 161 इन इंग्लिश एंड 163 इन मैथ्स। ये उनका स्कोर की रेंज थी, जो कि 324 बनता है, जो कि थोड़ा सा हाई एंड का स्कोर है GRE में। So these are some precedents. So I have a big list of precedents as well that I can share later at one stage. So this is a big, it's like a small summary for you. जून जुलाई के अंदर फिर तैयारी करें GRE की, अगस्त के अंदर GRE दे दें, यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करें, सितंबर अक्टूबर के अंदर अपना सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो करें, अदरवाइज टॉफल लाजमी दे दें, नवंबर के अंदर SOP फाइनलाइज करें, अपने ट्रांसक्रिप्ट ले लें, अपने ईमेल्स करें अगर प्रोफेसर्स को करनी है, या एटलीस्ट प्रोफेसर फाइनलाइज कर लें। हर यूनिवर्सिटी की SOP डिफरेंट होती है, यू कैन नॉट यूज द सेम SOP फॉर ऑल द 15 schools that you're applying to। और नवंबर दिसंबर एप्लीकेशन सबमिट कर दें, एंड देन वेट फॉर द ऑफर्स। एंड ऑफर्स यूजुअली मार्च में आपको ऑफर्स, यूजुअली फेब में या मार्च में आपको ऑफर्स आने लग जाती हैं। That is what I would say. There are some resources. As I said, I'll share the link with you for this. I'm going to stop this and I'm going to take you to, a browser, and I'm going to show you. Um, I will show you the, wait, stop. Let me share with you just specific browser that you can. Okay, can you see my sort of like browser? अच्छा, आपने 6-7 के ट्रेंड के बारे में सुना है? हमें लाइक 6-7 एक ट्रेंड आजकल बहुत ज्यादा फैला हुआ है, मुझे ये नहीं सुना इसके बारे में। मुझे आइडिया नहीं ओके, मैं मुझे भी आइडिया नहीं था, मुझे कल किसी ने बताया। आप गूगल पे जाके 6-7 लिखे ना तो देखें, इट मूव्स लाइक दिस। है। That's great. And nobody knows what this is, what is the meaning of 6-7, लेकिन this is something, a lot of teenagers are making TikToks and everything about it. Anyway, so the website that should be your home website is called US News Ranking Chemistry। ये वेबसाइट है जो आपने विजिट करनी है केमिस्ट्री के लिए और PhD के प्रोग्राम्स के लिए। यहाँ पर आपको रैंकिंग्स मिल जाएंगी और आपने यही रैंकिंग्स हैं जो यूज़ करनी है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू यूज़ द QS रैंकिंग और एनी अदर रैंकिंग। दिस इज द वेबसाइट दैट यू हैव टू यूज़, एंड देयर आर बंच ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन सी हियर। ये आपको एक तो स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की रैंकिंग्स दे रहा है, और उसके अलावा ये है कि यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आपने अगर इसको अरेंज करना है अपनी किसी स्पेशलिटी के हिसाब से, अगर आपने लो टू हाई जाना है आप उस पर जा सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल पे जा सकते हैं, लाइक यू कैन डू वट एवर यू प्रेफर। सो यहाँ से हम एक स्कूल कोई भी निकाल लेते हैं और हम उसकी प्रोफाइल्स पर जाके देखते हैं कि मजीद हमें वहाँ पे सर्च कैसे करनी है। ठीक है, लेट्स से हम यूनिवर्सिटी शिकागो ले लेते हैं। ठीक है, आपने इसको एक न्यू टैब में ओपन कर लिया। इट विल शो यू कि यू शिकागो के अंदर केमिस्ट्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। ये नंबर 8 बेस्ट है केमिस्ट्री में, और ओवरऑल भी यू शिकागो इज़ अ वेरी नंबर 9, सॉरी नंबर 9 है इस वक्त केमिस्ट्री में। ये ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग है। और अब आपको ये बताएगा जी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चले जाएं। आप क्या करें जी, अब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, माइट भी इनका होम पेज ब्रोकन है लेकिन आप खुद से सर्च कर सकते हो। PhD केमिस्ट्री U Chicago। So when you type it in, it will take you to that page. So this is now their page, and in this page you can probably find everything. So they say like application information, and they will share. Okay, so if they are saying okay, we are going to arrange 2 information sessions. One was on November 4th, the other one was November 11, and they will share. For example, you can see their deadline is December 1st. So this is usually their deadline every year. It will be the next deadline will be December 1st, 2026. So you have a lot of time to apply for this school. They are telling their application fee is $90. And look, they are saying very clearly that this fee can be waived if the application fall in one of the several categories listed in the following link. So you just have to say like you are in a financial burden and you cannot afford, which is completely understandable coming from Pakistan, knowing that currency difference. अब अच्छा, ये इसके ऊपर ना आपको तमाम, अब आपने करना क्या है कि आपने एक शीट बनानी है। उस शीट पर आपने डिटेल में लिखना है कि जो ना कौन सी यूनिवर्सिटी है, उसकी क्या डेडलाइन है। एक सेकेंड, लेट मी शो यू हाउ टू डू दैट। Like what is the best way to do this? Uh, so um, so this is a list that I made for one of my friends last year who was applying for. Can you see this? Okay, so this is a list that I made for one of my friends. Let me make it a little bit bigger if I can. Somehow. Okay, so this is a list that I made for one of my friends last year. Is can oh So I put the name of the university, the fee of the university, and if they require a test, and application fee, who you need to send to the email, if you pay their fee, and what is your current status. Like this kind of, you can make this kind of list for you.
Like everybody can make a list like that for them. So this is a list that we made for a friend of mine last year. So make that list for all the universities. And then you can also visit the university page to see the faculty. So they give you sort of like everything here. कि भाई या तो आप किसी specific area में search कर सकते हो. Like for example, you want to search for organic chemistry. These are the professors that are there for organic chemistry. You can look for their profiles, and if it looks good to you, you should pursue. For example, हम इसके page को visit करते हैं. You will go there, and every professor, like most of the professors, often have their own research profile as a research website as well. Let me show you an example. Um, सो दिस इज यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय शिकागो. आप इनकी केमिस्ट्री की फैकल्टी पर आ गए. ये तमाम प्रोफेसर्स की वेबसाइट्स दी हुई हैं. लेट्स से दैट वी लुक फॉर मिनजंग रियो. ठीक है. We opened her profile. We're looking at her profile because she's my advisor. So this is her profile. You will get to hear information about her projects and what she's doing. And then also, most often professors have their own websites. So you will go to internet and you will just type Rio Group, uh, UIC, and it will take you to her research group page. So now this is her research group page, and this page will list, recent news. You can read about the people. When you go to the people, it will show you like who is in her research group. You can link. You can click on anybody's profile and get to know about them, like what they are doing, what kind of research they are doing. You can look for their research in the group. You can look for the publications that are coming out of the group. The most recent, in my opinion, is if you go to the people's profile, that is most often most recently updated. In my case, if as I said about CV at one stage, so you can download my CV from my website. It's here. You can also reach to my different websites here as well. So this is how you access universities, and this is how you make the list. Um, Anything that I missed? You are talking about the safe school. Very important. Let me go back. So for the safe schools, I would say, yeah, go back to the US News ranking and look for something under. So for example, right now you see, um, um, let's see. It's going to take some time, but we'll keep going down, keep going down. Uh, I'm trying to look for universities that have ranked below 100. Um, So yeah, here you can say like Utah State University, for example, their rank is 119. University of Texas, Dallas, UT Dallas, इसका रैंक काफी नीचे है. यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा काफी नीचे रैंक है इसका. यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हैम्पशायर. तो ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जिनका रैंक काफी नीचे, लाइक बिलो 100 रैंक नीचे ही कंसिडर होता है. तो इन लेकिन ये रैंक नीचे का मतलब कतन ये नहीं कि यूनिवर्सिटीज ये अच्छी नहीं है. दे आर रियली रियली गुड स्कूल्स. लेकिन इंटरनेशनली जब बात की जाती है, लेकिन कंपैरेटिवली यूएस के अंदर ये रैंकिंग कम है. यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर, Montana, North Texas, Rhode Island. So इनकी ये safe schools हैं in my opinion. So you should apply in a couple of Illinois Institute of Technology, IIT. This is in Chicago as well. Michigan Technological University, Stephen Institute, St. Louis University, Texas Christian University. So these are the universities that you can apply in as well. Remember कि जो सेफ स्कूल्स होते हैं उनकी रैंकिंग नीचे होती है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम उल्टी भी हो जाती है कि उनके पास फंडिंग नहीं होती है, तो दे डोंट हायर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. लेकिन स्टिल देयर आर प्रीटी गुड चांसेस कि यू विल हियर पॉजिटिवली फ्रॉम सम सेफ स्कूल्स. यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा, आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ से ऑलमोस्ट कहा जाता है कि जो भी अप्लाई करता है उन्हें ऑफर आ जाती है, एज लॉन्ग एज योर प्रोफाइल हैज समथिंग इन इट. तो ये माइंड में रखिएगा ये भी. तो सर ये बता दें कि जो यूएस में पीएचडी है, आया कि वो फुली फंडेड है, और अगर फुली फंडेड है तो स्टूडेंट नॉर्मली जनरली कितना ले रहे होते हैं, या उनको स्कॉलरशिप कितना मिल रहा होता है, क्या वो अफोर्डेबल है? जो यूएस में पीएचडी होती है दैट इज फुली फंडेड, लेकिन दिस फंडिंग कैन इज नॉट आउट ऑफ ब्लू. सो यू हैव टू वर्क फॉर दिस. सो यू वर्क एज अ टीए विच इज टीचिंग असिस्टेंट. तो आपको पढ़ाना होता है बच्चों को. यहाँ पे यूजुअली आप जनरल केमिस्ट्री पढ़ाते हो, केम 122, 123, ऑर्गेनिक 1, ऑर्गेनिक 2. मेरे केस में यही कोर्सेज हैं जो मैंने पढ़ाए हैं. तो आपको यूजुअली आपकी क्लास में देर आर अबाउट 600 स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. सो आपको उन्हें पढ़ाना होता है. यू आर देयर टीचिंग असिस्टेंट, और either that or you are a research assistant. Research assistant के अंदर आपको पढ़ाना नहीं होता, लेकिन you have to assist professor in their research mission. Now, the research that you are doing as a part of your PhD could be different from your research assistant position, क्योंकि आने का मतलब आप प्रोफेसर को उसकी रिसर्च में हेल्प कर रहे हो. That doesn't have to be your own research. कभी कभी ऐसे होता है कि वो ओवरलैप हो जाता है, यानी जो आपकी रिसर्च है उसी के लिए आप आ रहे भी हो, तो वो थोड़ा सा आप प्रोफेसर को भी असिस्ट कर रहे हो, साथ साथ आपकी अपनी प्रोफाइल बनती जा रही है. सो that is how it goes. And stipend is pretty sufficient for you. You get health insurance, you get your tuition fee, everything gets paid. um
it's pretty good. The stipend is pretty good for a graduate student to survive and flourish. जो आपने स्टेप शेयर किया है आया कि ये मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी हैं या ओनली स्पेसिफिक टू द पीएचडीज? So everything is same to apply for master's or PhD program, but I never recommend to apply for master's program because very difficult to get into master's program. Number one, number two, there is no funding for master's programs in the US. It's very rare, but mostly there is no funding. So आप यूएस आ रहे हो इतने पैसे लगा कर फिर मास्टर्स करना है यहाँ से, तो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट एट ऑल। बैचलर के बारे में भी यही सोचें। अंडर ग्रेजुएट अगर आप यूएस से करना चाह रहे हो, इट कुड बी अ रियली गुड इन्वेस्टमेंट, लेकिन वेरी एक्सपेंसिव। That's great. So, any final advice to the young researchers, especially? I always say one thing, and I will say this again: think outside the box. Like आपकी example, Amir, is like a very. I have given your example to a lot of people, and it's like to be honest, it's like a very motivating example that you made your way. I believe you were in China before coming here, if I'm not wrong, Yeah. right? So you made your way there, and then you came to the Europe. So that is like a big thing. It's nothing small. Um, सरगोदा में हमें पता है कि रिसर्च एजुकेशन के क्या हालात हैं, वहाँ से निकल के ये सफ़र तय करना, यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात होती है। तो दिस इज़ व्हाट आई विल say to everyone, that regardless of your city, regardless of your financial status, regardless of your undergraduate's university, regardless of you're a male or a female or whatever, regardless of everything, just think outside the box and just think that you can do it. मैंने कभी भी सोचा नहीं था, I was the first person ever कि जो सरगोदा यूनिवर्सिटी के बीएस करते हुए अमेरिका आया था। That's और big. That's very big achievement. दैट वाज एंड और किसी को भी पता नहीं था उस टाइम पे जब मैं वहाँ पे जाता, और वहाँ पे मुझे अभी तक याद है कि मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा कि 6 एक महीने मुझे ये करने पे यूनिवर्सिटी को सिर्फ बताने पे लगे थे कि ये एक लेजिटिमेट प्रोग्राम है जिसमें मैं जा रहा हूँ और मुझे एनओसी चाहिए, ये वो, मुझे बहुत चक्कर और वाइस चांसलर तक के ऑफिस के चक्कर क्या कुछ करके एक स्टेज पे आई ऑलमोस्ट गिव अप क्योंकि मुझे परमिशंस नहीं मिल रही थी, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रही थी, लेकिन आई जस्ट परसूड। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट एक बिल्कुल एंड पे है यूनिवर्सिटी के, और एडमिन ऑफिस फ्रंट पर है, तो वहाँ से पैदल चल के दिन में 4 5 दफ़ा जाना और जलील होना, वहाँ पे लोग जैसे बातें करते हैं, लेकिन आई नेवर गिव अप। मुझे ये था कि मैं जाऊंगा, और आई केम टू द यूएस इवेंचुअली इन अंडरग्रेजुएट। सो दिस इज समथिंग आई विल से, डोंट गिव अप एंड ड्रीम बिग, ड्रीम एज बिग एज यू कैन। मतलब आप हर कोई कर सकता है। मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था। मैंने 2013 में मैंने एमडी कैट दिया था, मेडिकल कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम, और मेरा नहीं हुआ था मेडिकल में, और मुझे उस वक्त ये लगता था कि शायद आई एम नॉट कैपेबल ऑफ एनीथिंग, मे बी आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, ब्ला ब्ला ब्ला, आई डोंट नो इफ आई एम स्मार्ट इवन टुडे। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ और सोचा होता है, आपके कुछ और स्किल्स होते हैं जो जो आपको अल्लाह ताला ने देने होते हैं। तो आई वुड, दिस इज वन थिंग आई विल एडवाइस टू एवरीवन: इफ यू couldn't get into medical or engineering, that's not the end of the world. If you're doing BS from a university in Pakistan that is not very well ranked, don't think you don't stand a chance. You will, if you try, you will make it. मेरा एक दोस्त है इलियास, वो, उसको मैं एक बात कहा करता था, और अभी कुछ दिन पहले उसने मुझे ये कहा कि मैं हमेशा ये कहा करता था कि डेयर टू स्टेप फॉरवर्ड, द वर्ल्ड इज रेडी टू एक्सेप्ट यू। मैं ये उसको उस वक्त कहा को मुझे भूल भी गया था कि मैं उसे कहा करता था, कुछ दिन पहले वो ये मुझे रिमाइंड करवा रहा था। तो दैट इज समथिंग आई विल कंक्लूड ऑन प्रोबेबली, कि डेयर टू स्टेप फॉरवर्ड, द वर्ल्ड इज मोस्ट डेफिनेटली रेडी टू वेलकम यू ऑल। बी ओपन, थिंक बिग अबाउट योर सेल्फ। बहुत खूब सर, आप ना सिर्फ मेरे लिए इंस्पायरेशन है बल्कि बहुत सारों के लिए भी आप सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है। तो सर, थैंक यू बोलना शायद बहुत छोटा लफ्ज़ है, आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम दिया, फिर इतना डिटेल एनालिसिस किया, एवरी स्टेप एक्सप्लेन्ड इन वेरी वेल मैनर्ड। सो थैंक यू वेरी मच सर। नो और प्रॉब्लम, आमिर, ऑलवेज वेलकम, एंड आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि आप भी ये टाइम जो आपने निकाला है और जो कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, दिस पेज ऑफ ऑलवेज ऑलवेज। जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो दिस इज अ बिग थिंग दैट यू आर डूइंग। अगर इससे किसी एक स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाती है तो इट वुड बी अ बिग अचीवमेंट ऑन योर साइड एज वेल। सर, इसके पीछे आइडिया यही है कि मैंने भी एक यूट्यूब पोस्ट देखी थी, तो मैंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। तो शायद हो सकता है मेरी वजह से भी किसी का लाइफ लाइफ बन जाए, तो यही आइडिया रहता है पीछे। That is awesome, like a chain reaction kind of thing. This is amazing. सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। वेरी वेलकम, ऑलवेज वेलकम आमिर। अपना ख्याल रखें आप, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती है। हैव अ गुड हेल्थ सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके जी, हाफिज।